Hello students, this is Dr. Vinod and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve important MCQs related with the topic de-Broglie hypothesis. So without wasting time, let us start one by one. First question, the de-Broglie wavelength associated with the particle of mass m moving with velocity v is. Option first, h upon mv. Option second, mv upon h. Third option, mh upon v. And fourth option, m upon hv. According to de-Broglie hypothesis, we know that wavelength associated with the moving particle, it is equals to h upon p. जो भी wavelength है, it is associated with the moving particle, it is equals to h upon p, where h is nothing but the Planck's constant and p is nothing but the momentum. Okay, let us imagine that this is a one particle which is moving in this direction with a velocity v. The particle having the mass m. तो उस पार्टिकल के साथ जो भी वेव एसोसिएट रहेगा अकॉर्डिंग टू de-Broglie hypothesis, that wave का wavelength it is given by this one which is equals to h upon p, where p is nothing but the momentum of this particle. अब इस पार्टिकल का मोमेंटम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? द मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल इट इज इक्वल्स टू m इंटू v. तो यहाँ पे मोमेंटम के जगह पे हम mv लिख देते हैं. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू लैम्बडा, इट इज इक्वल्स टू h अपॉन mv. सो दिस इज नथिंग बट द de-Broglie wavelength associated with the particle having the mass m and moving with velocity v. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए? h upon mv. So option A is correct one. Next question. When the kinetic energy of an electron is increased, the wavelength of associated wave will. First option is increase. Second option is decrease. Third option is wavelength does not depends on the kinetic energy. And fourth option is none of above. Okay, so क्या हो सकता है वो हम यहाँ पे देखेंगे. जैसे कि हमें पता है अगर कोई पार्टिकल है having the mass of m which is moving with a velocity v, तो उस पार्टिकल का kinetic energy, okay, it is represented by capital E which is equals to half m into v square, where E is nothing but the kinetic energy of that moving particle, which is equals to 1 by 2 mv square. Okay, अब इसको हमें मोमेंटम के टर्म्स में लिखना है. कैसे? देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल्स टू 1 by 2 m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m. मैंने m से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे डिवाइड किया. Okay, so m into v, product of mass into velocity, this is nothing but the momentum. Therefore, this is equals to p square upon twice m आएगा, where p is nothing but the momentum, which is nothing but the m into v. Okay, so E is equals to p square by twice m आ गया. So therefore, p square is equals to E into twice m आएगा. Okay, so p square it is equals to twice m into E आएगा. अगर हम p की बात करते हैं it is equals to the under root of twice m E, where m is a mass, E is the kinetic energy, and this p is nothing but the momentum. Now according to de-Broglie hypothesis, lambda it is equals to h upon p था. Okay, where h is nothing but the Planck's constant, p is nothing but the momentum. अब यहाँ पे p की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दिस वन. सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू h एज इट इज, p के जगह पे अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m e. ओके, सो हमें एक नया फॉर्मूला यहाँ पे मिल चुका है. लैम्बडा इट इज इक्वल्स टू h अपॉन रूट ऑफ ट्वाइस m e. Okay, now this is the wavelength of that wave which is associated with that moving particle. This one is a Planck's constant, this one is the mass of that particle. अब यहाँ पे
अगर हम h और m इन दोनों को कांस्टेंट रखते हैं, h और m इन दोनों को अगर कांस्टेंट रखते हैं, सो दिस लैम्बडा इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ई आएगा। ओके जैसे जैसे e की वैल्यू बढ़ेगा, e जो भी है स्क्वायर रूट के अंदर है वो भी डिनोमिनेटर में है, जैसे जैसे e की वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे लैम्बडा की वैल्यू कम होना चाहिए। ओके सो व्हाट इज द e? दिस वन इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पे देखिए व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज, अगर हम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं तो वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड विथ वेव विल बी, तो वेवलेंथ क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। द ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द de-Broglie wavelengths for a proton and for a alpha particle are equal, then the ratio of their velocities will be option A 4:1, option B 2:1, option C 1:2, option D 1:4। इनमें से कौन सा करेक्ट होना चाहिए? ओके अब यहाँ पे बात हो रही है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, दोनों का de-Broglie वेवलेंथ कैसा है? सेम है। नाउ लेट अस imagine that de-Broglie wavelength for the proton it is equals to, according to formula, h upon mp and vp, where m is nothing but the m suffix p is nothing but the mass of the proton, this is the velocity of the proton, this one is the h which is the Planck's constant। इसी तरह अगर हम de-Broglie wavelength फाइंड आउट करते हैं अल्फा पार्टिकल का, अगर लिखते हैं तो इट इज इक्वल्स टू h अपॉन m alpha v alpha, where this is the velocity of the alpha particle, this is the mass of the alpha particle। okay अगर हम यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, the de-Broglie wavelength for proton and alpha particles are equal, यानी दोनों का de-Broglie wavelength कैसा है? इक्वल है। सो लैम्बडा सफिक्स p और लैम्बडा अल्फा ये दोनों कैसे होना चाहिए? सेम होंगे। अगर ये दोनों सेम होंगे तो ये दोनों भी सेम होना चाहिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन हियर वी कैन राइट h अपॉन mp, m सफिक्स p और v सफिक्स p इट इज इक्वल्स टू h अपॉन m अल्फा और v सफिक्स अल्फा। ओके जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा m p v p इट इज इक्वल्स टू m अल्फा v अल्फा। ओके इसको और सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए? m अल्फा अपॉन m p, m अल्फा अपॉन m p इट इज इक्वल्स टू v p अपॉन v अल्फा, v p अपॉन v अल्फा। ओके अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, व्हाट इज द vp? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन, दिस वन इज द वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, दिस वन इट इज नथिंग बट द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, दिस इज नथिंग बट द मास ऑफ द प्रोटॉन। जब हम मास ऑफ द प्रोटॉन और मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल का कंपैरिजन करते हैं तो अल्फा पार्टिकल में 4 प्रोटॉन्स इतना मास होता है। ओके सो हियर वी कैन राइट m सफिक्स p यानी मास ऑफ द प्रोटॉन अगर हम 1 लेते हैं तो इसका मास कितना होना चाहिए? 4 टाइम्स होना चाहिए। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन विथ रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इट इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 1। सो ये उसका आंसर हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, द de-Broglie wavelength lambda associated with an electron having kinetic energy E is given by the expression. There are 4 options are there. Okay, so ये जो भी है फॉर्मूला हमने ऑलरेडी यूज किया है फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने में। जैसे आपको याद होगा वहां पे हमने मोमेंटम के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट किया था, P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m e। ओके अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, जैसे कि de-Broglie हाइपोथेसिस का फॉर्मूला पता है, लैम्बडा इट इज इक्वल्स टू h अपॉन p था, सो दिस इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ p की जगह पे क्या आ जाएगा? ट्वाइस m इंटू e। दिस इज द वैल्यू ऑफ de-Broglie वेवलेंथ।
of that particle which is moving with the kinetic energy E, which is equals to h upon under root of twice me. Option A is correct one. Next one, what will be the ratio of de-Broglie wavelengths of proton and alpha particle of same energy? ओके, फिर से उन्होंने पूछा है कि यहाँ पे रेशियो क्या होगा de-Broglie वेवलेंथ्स का, लेकिन पेयर वही है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, लेकिन यहाँ पे क्या कांस्टेंट दिया है, एनर्जी. दोनों का एनर्जी कैसा है, सेम है. ओके, तो हमें याद होना चाहिए कि de-Broglie वेवलेंथ का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, दैट इज नथिंग बट द जनरल इक्वेशन जो भी है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई. ये इक्वेशन अब हम यूज करने वाले, दिस इज अ जनरल इक्वेशन. ओके, फॉर प्रोटॉन के लिए लैम्बडा पी इट इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम प्रोटॉन ई प्रोटॉन. ओके, एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन. और उसी तरह लैम्बडा फॉर द अल्फा पार्टिकल इट इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 times of mass of the alpha particle into the energy of the alpha particle. ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है de-Broglie वेवलेंथ्स का प्रोटॉन विथ रिस्पेक्ट टू द अल्फा पार्टिकल. सो दिस इक्वेशन को इस इक्वेशन से हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद कुछ इस तरीके का हमें इंटरफेस मिलेगा. ओके, सो यहाँ पे देखिए लैम्बडा पी अपॉन लैम्बडा अल्फा, this is the de-Broglie wavelength for the proton, this one is the de-Broglie wavelength for the alpha particle. अब this one upon this one है, तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो सकता है देखिएगा. सो h गेट कैंसिल, प्लैंक्स कांस्टेंट है. सो दिस टू गेट कैंसिल. जैसे कि यहाँ पे बात हो रही थी कि दोनों की एनर्जी कैसा है, सेम है. अगर दोनों की एनर्जी सेम है तो एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन और एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल की भी सेम होना चाहिए. ओके, सो यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू, ओके, दिस इज इक्वल्स टू, अगर इक्वेट करते हैं तो इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एम पी अपॉन, यहाँ पे बचा है नीचे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एम अल्फा. ओके, सो ये ऊपर जाएगा और इसको सॉल्व करने के बाद ये होगा, इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एम अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ एम P. So this is equals to under root of m alpha upon m p. So ये अल्फा एक्चुअली यहाँ पे कैसा है, इट इज ये नीचे आएगा, m सफिक्स अल्फा है वो, m सफिक्स अल्फा और ये m सफिक्स p. ओके, सो फाइनल इक्वेशन जो भी हमें मिला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इट इज इक्वल्स टू लैम्बडा p अपॉन लैम्बडा अल्फा. दिस इज द de-Broglie wavelength of proton with respect to the de-Broglie wavelength of alpha particle, it is equals to under root of mass of the alpha upon mass of the proton. जैसे कि हमने इसके पहले बात किया था कि मास ऑफ द प्रोटॉन्स के कितने टाइम्स ज़्यादा मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल होता है, तो 4 टाइम्स. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 1 और इसका स्क्वायर रूट अगर हम ले लेते हैं, दिस इज बिकम अ 2 अपॉन 1. तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2:1. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट वन, द de-Broglie wavelength of an electron having 80 electron volt of energy is nearly 1 electron volt is equals to 1.6 into 10⁻⁻19 joule. ओके, उसके बाद मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिया है विच इज इक्वल्स टू 9 into 10⁻31 किलोग्राम. उसके बाद दिया है प्लैंक्स कांस्टेंट जो वैल्यू होता है 6.6 into 10⁻34 जूल सेकंड. ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर दिस वन. अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है de-Broglie वेवलेंथ. ओके, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन de-Broglie वेवलेंथ का क्या है, लैम्बडा इट इज इक्वल्स टू h अपॉन p है, और इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगर आप देखते हो तो इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस एम ई, वेयर E is nothing but the kinetic energy, H is nothing but the Planck's constant, M is nothing but the mass. Okay, अब
इस फॉर्मूले में हमें जो भी एनर्जी यूज करना है इट शुड बी इन अ जूल। वो किस में होना चाहिए? जूल में होना चाहिए, सभी ऐसा यूनिट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो भी एनर्जी दिया है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। ओके, अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स हाउ मेनी जूल? यहाँ पे इक्वेशन दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होगा। तो 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल? तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सो एनर्जी जो भी है E it is equals to 80 electron volt, it is equals to 80 multiplied by 1.6 into 10⁻⁻19। ओके, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है जूल। ये पूरा जो भी टर्म्स आएगा ये होगा जूल में। ओके, सो हमें एनर्जी का ये वैल्यू यूज करना है फॉर्मूले में, नॉट दिस वन। ओके, ये जूल में क्वांटिटी यूज करना है। ओके, तो सभी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू कितना है? इट इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ओके, -34 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय मास की वैल्यू कितना है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻31। ओके, इनटू एनर्जी की वैल्यू कितना है? ई की वैल्यू इट इज इक्वल टू 80 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, ये हो गया पूरा वैल्यू। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 1.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, इतना वैल्यू इसका आता है। ओके, अब 10⁻⁻10 है तो इसको हम एंगस्ट्रॉम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 1.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, सो 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। सो जो भी de-Broglie वेवलेंथ है इस पार्टिकल के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए, वो आता है 1.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। Next one, the speed of an electron having a wavelength of 10⁻⁻10 meter is, this is the wavelength is given, उस इलेक्ट्रॉन का स्पीड फाइंड आउट करना है। ओके, कितने स्पीड से वो मूव हो रहा होगा। अब इसके लिए हमें ज़रूरत कुछ कांस्टेंट की पड़ने वाली है, जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला इज नथिंग बट द लैम्बडा इट इज इक्वल्स टू h upon p. What is the p? This one is the momentum. H is nothing but the Planck's constant, which is equals to h upon m into v. Okay, lambda is equals to h upon mv, where m is the mass of the electron, v is nothing but its speed. Okay, so on the basis of this formula we can write here v is equals to, हम v को इस साइड ला लेते हैं, लैम्बडा को इस साइड शिफ्ट कर लेंगे, तो ये बनेगा v इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू लैम्बडा। v इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू लैम्बडा। ओके, अब यहाँ पे देखिए वेवलेंथ दिया है विच इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ऐसा यूनिट में है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, इट इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमने पिछली प्रॉब्लम में यूज किया था, इट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इट इज इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन m, मास इट इज इक्वल्स टू 9.1 है, लेकिन 9 इंटू 10⁻31 कर लेंगे, into lambda 10⁻10। ओके, दिस इज इक्वल्स टू, ये जो भी है 6.63 को एज इट इज रखते हैं अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाय, ये 10⁻31 है, 10⁻10, ये दोनों 10⁻31 होंगे, और इसको अगर हम ऊपर लाते हैं तो 10⁻+41 होगा, +41 -34, ये होगा 10⁻7। दिस इज इक्वल्स टू
अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू जो भी आता है दिस वन इट इज इक्वल टू 0.725 इंटू 10⁻⁷ ये इसका आंसर होगा वेलोसिटी का। इसको थोड़ा हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू एक डेसिमल पॉइंट को मैं इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये होगा 7.25 इंटू 10⁻⁷। ओके, दिस इज इन अ मीटर पर सेकंड, ये होगा उसका यूनिट। दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग okay with having de-Broglie wavelength which is equals to 10⁻⁻10 meter. So this is a answer 7.25 into 10⁻⁷ meter per second. Option A is correct one. Next question. The de-Broglie wavelength of a particle accelerated with 150 volt potential is 10⁻⁻10 meter. ओके एक पार्टिकल को जब हम एक्सेलरेट कर रहे हैं विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 150 वोल्ट, उस वक्त उसका वेवलेंथ कितना है, de-Broglie वेवलेंथ इट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 वोल्ट। अगर उसी पार्टिकल को इफ इट इज एक्सेलरेटेड बाय 600 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, इट्स वेवलेंथ विल बी, अगर उसी पार्टिकल को अब हम एक्सेलरेट कर रहे हैं 600 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से, तो उसका वेवलेंथ कितना होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे फॉर्मूला में जो भी पता है दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट द लैम्बडा इट इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस me। व्हाट इज द E? काइनेटिक एनर्जी। ओके, जब हम किसी पार्टिकल को, ये ध्यान से सुनना है आपको, किसी पार्टिकल को हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, ओके, इफ दिस आर द टू इलेक्ट्रोड्स, अगर अक्रॉस दिस टू इलेक्ट्रोड्स हमने कुछ वोल्टेज अप्लाई किया, जो भी वोल्टेज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, इफ दैट वोल्टेज इज नथिंग बट द V इतना पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं बिटवीन दिस टू प्लेट्स। ओके, एक पॉजिटिव प्लेट बन गया और दूसरा नेगेटिव प्लेट बन गया। अब यहाँ पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे कि ये वाला, ओके, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है हैविंग द अमाउंट ऑफ Q, अब ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा, और इसके ऊपर जो भी फोर्स एक्ट होगा उस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल इस साइड मूव होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इट इज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। ओके, सो हम पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा एक्ट होगा, तो इतना उसका काइनेटिक एनर्जी उतना ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी विच इज रिप्रेजेंट बाय E विच इज इक्वल्स टू Q इंटू V, ये इक्वेशन आपको याद रखना है। दिस इज द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्लेट्स अप्लाई कर रहे हैं वो, दिस Q इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दैट पार्टिकल। ओके, दिस इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी। सो E इज इक्वल्स टू Q इंटू V, ये आपको याद रखना है। तो इस E की वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। सो देयरफॉर लैम्बडा इट इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m, E की जगह पे Q इंटू V, सो Q इंटू V। नाउ व्हाट इज द Q? दिस इज द चार्ज। व्हाट इज द V? इट इज अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए de-Broglie वेवलेंथ और पोटेंशियल, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं हम, वो वोल्टेज, सो ये दोनों यहाँ पे इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे एक में को कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक ही पार्टिकल की बात हो रही है। जब हमने 150 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, उस वक्त हमें मान के चलिए λ1 इतना वेवलेंथ मिला था। जब हम उसको 600 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, उस वक्त जो भी वेवलेंथ होगा, लेट अस इमेजिन दैट वेवलेंथ इट इज नथिंग बट द λ2। ओके, सो यहाँ पे इन दोनों में हमें λ2 फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन, ये जो भी डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे थे, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m Q इंटू V। अब एक ही चार्ज के बारे में बात हो रही है तो h कांस्टेंट होगा, पार्टिकल एक ही है, उसके ऊपर जो भी चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, जो भी उसका मास है वो भी कांस्टेंट रहेगा। सो यहाँ पे h m Q ये तीनों कांस्टेंट है, 2 is a number, so therefore on the basis of this one we can write here lambda it is proportional to 1 upon under root of V। ये हम अब यूज करने वाले हैं।
ओके अब यहाँ पे देखिए लैम्बडा वन इज नथिंग बट द इनिशियल de-Broglie wavelength, दिस वन इज द फाइनल de-Broglie wavelength. सो ये इस तरीके से एक मिक्स तो कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्बडा अपॉन लैम्बडा टू इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ V2 upon V1. Okay, what is the V2? This is the final potential difference which is equals to 600 volt. V1 is nothing but the initial potential difference which is equals to 150 volt. Lambda 1 is nothing but the initial de-Broglie wavelength. This is the final de-Broglie wavelength. Okay, so यहाँ पे it is equals to under root of ये होगा 600 upon 150. Okay, this is equals to under root of 4 which is equals to 2. कितना हो गया 2. ओके सो लैम्बडा वन अपॉन लैम्बडा टू इज इक्वल्स टू 2. हमें फाइंड आउट करना है लैम्बडा टू. सो लैम्बडा टू की वैल्यू कितना होना चाहिए, लैम्बडा टू इट इज इक्वल्स टू लैम्बडा टू इज इक्वल्स टू लैम्बडा वन अपॉन टू. सो लैम्बडा वन अपॉन टू. अब लैम्बडा वन की वैल्यू कितना दिया है 10⁻⁻10 मीटर. सो 10⁻⁻10 अपॉन 2 मीटर. सो दिस इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10⁻⁻10 हम लिख सकते हैं मीटर में. अब 10⁻⁻10 मीटर को हम एंगस्ट्रॉम यूनिट में लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल्स टू 0.5 एंगस्ट्रॉम यूनिट. सो दिस इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड de-Broglie वेवलेंथ. जब उसका हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर रहे हैं 600 वोल्ट. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, the de-Broglie wavelength of a neutron at 27 degrees Celsius is lambda. What will be its wavelength at 927 degree Celsius? So यहाँ पे देखिए अब wavelength जो भी है in terms of temperature दिया है. ओके ये ऐसे पार्टिकल्स के लिए यूज किया जाता है जनरली जो चार्ज पार्टिकल नहीं है. ओके तो इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, फॉर्मूला वही यूज होगा थोड़ा मॉडिफाई करके. जनरल फॉर्मूला है हमारा लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी. उसको हमने और अलग तरीके से लिखा था, इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम इनटू ई. नाउ व्हाट इज द ई, दिस इज नथिंग बट द एनर्जी. ओके अब किसी न्यूट्रल पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज नहीं है उसकी एनर्जी थर्मल एनर्जी हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये याद रखना है आपको इक्वेशन. E इज इक्वल्स टू KT where K is nothing but the Boltzmann's constant, T is nothing but the absolute temperature. मैं रिपीट करता हूँ, it is nothing but the absolute temperature. ओके सो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज जो भी है E की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल इक्वेशन क्या होगा हमारा. सो नया इक्वेशन आएगा लैम्बडा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर विच इज इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट ऑफ twice m KT. Okay, so this K is nothing but the Boltzmann's constant and this T is nothing but the temperature, absolute temperature in a Kelvin. Okay, so अब इसके बेसिस पे देखिए यहाँ पे de-Broglie wavelength of neutron at 27 डिग्री सेल्सियस कितना था लैम्बडा. अब वो जब हम टेम्परेचर 927 कर रहे हैं उस वक्त वेवलेंथ कितना होगा ये हमें पूछा गया है. ओके उस वक्त का जो भी वेवलेंथ होगा इतने टेम्परेचर पे हम उसको लैम्बडा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. सो देयरफॉर यहाँ पे लैम्बडा अपॉन लैम्बडा डैश इट इज इक्वल्स टू. ओके यहाँ पे देखिए lambda it is equals to h upon under root of twice m kt. K is a constant, m is nothing but the mass और यहाँ पे उसका constant रहेगा, h is also constant. This lambda is proportional to 1 upon root t आएगा. So therefore here we can write here this is equals to lambda, sorry ये कितना होना चाहिए, this is nothing but the T1 upon T2. Okay, sorry, T2 upon T1. This is the initial temperature, this one is the final temperature. या T upon T dash भी लिख सकते हैं हम, थोड़ा समझने में आसानी होगा. So this is equals to T dash upon T. This is the initial temperature, this is nothing but the 27 डिग्री सेल्सियस. उसको हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में और ये क्या है T dash, इसको भी हमें कन्वर्ट करना है विच इज इक्वल्स टू 927 डिग्री सेल्सियस. ओके सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
ओके, टी डैश की वैल्यू कितना है 927 प्लस 273, ये होगा 1200 केल्विन अपॉन टी कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको हमें ऐड करना है 273 से, तो ये हो जाएगा 300. ओके, सो 0 0 0 0 गेट कैंसल, सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 which is equals to 2. So lambda upon lambda dash is equals to 2. हमें फाइंड आउट करना है lambda dash, therefore lambda dash it is equals to lambda upon 2 और lambda की वैल्यू कितना दिया है, it is equals to, सॉरी यह आंसर कितना आएगा, लैम्बडा की वैल्यू दिया नहीं है, सीधा सीधा लैम्बडा दिया है, तो ये आएगा लैम्बडा डैश इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 2. सो दिस इज अ correct answer. The option A is correct one. Next question. An electron and proton have the same de-Broglie wavelength. Okay, electron और proton का दोनों का de-Broglie wavelength कैसा है, सेम है. Then the kinetic energy of the electron is, electron का kinetic energy, first option is 0, second option is infinity, third option is equal to the kinetic energy of proton, fourth option is greater than the kinetic energy of the proton. इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो पहले तो दो हो ही नहीं सकते, थर्ड और फोर्थ में देखते हैं हम. ओके, एक जनरल फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज नथिंग बट द लैम्बडा, इट इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे de-Broglie वेवलेंथ और एनर्जी की बात हो रही है, तो इन दोनों को रिलेट करने वाला फॉर्मूला हमें चाहिए, विच इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई. ओके, सो दिस E इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी. ओके, अब यहाँ पे दोनों के लिए वेवलेंथ कैसा है, सेम है. ओके, तो दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन सबसे पहले हम लिख लेते हैं. सो लैम्बडा फॉर द इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल्स टू h अपॉन under root of m suffix, sorry, 2 m suffix e into capital E suffix e. This is the kinetic energy of electron, this is the mass of the electron. उसी तरह lambda of proton it is equals to h upon under root of twice m suffix p e suffix p. Okay, so this is the mass of the proton, this is the energy, kinetic energy of the proton. According to this one, the de-Broglie wavelength is same. Okay, so therefore this one it is equals to this one. So therefore अगर इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं, इक्वेट करने के बाद एच एस कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट अगर हम निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा एम सफिक्स ई कैपिटल ई सफिक्स ई, इट इज इक्वल्स टू एम सफिक्स पी कैपिटल ई सफिक्स पी. ओके, हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन निकालना है. सो देयरफॉर ई सफिक्स पी इट इज इक्वल्स टू, या ई सफिक्स ई इट इज इक्वल्स टू. ओके, तो ये क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा एम पी अपॉन एम ई इंटू ई पी. ओके, सो अब देखिए, दिस इज द मास ऑफ द प्रोटॉन, दिस वन इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अब जब हम कंपेयर करेंगे दोनों को, एज वी नो दैट मास ऑफ द प्रोटॉन इट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ओके, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻31, जबकि प्रोटॉन का मास जो भी होता है इट इज अराउंड 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻27. So mass of the proton is much greater than the mass of electron. अगर ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन. ओके, सो ऑप्शन जो भी है डी ऑप्शन इज करेक्ट वन. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज मच ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन. So option D is correct one. तो अब तक हमने देखा कुछ MCQs को कैसे सॉल्व किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ de-Broglie wavelength.
फार्मूला एक ही है, उसके 4 अलग अलग फॉर्म्स है। सबसे पहले हमने देखा था बेसिक फार्मूला विच इज इक्वल टू लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ओके, सेकंड फॉर्म जो भी था लैम्बडा इट इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम इंटू ई। थर्ड फॉर्मूला जो भी था लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम क्यू इंटू वी। और फोर्थ फॉर्म जो भी था उसका एच अपॉन under root of twice m k into T, where k is nothing but the Boltzmann constant, T is nothing but the temperature, here V is nothing but the voltage, Q is nothing but the charge, E is nothing but the kinetic energy, this is the momentum, m is nothing but the mass. Okay, so अलग अलग फॉर्मूला हमें कब यूज करना चाहिए ये हमने देखा है। ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करेंगे हम प्रॉब्लम्स जो भी है, प्रॉब्लम्स में एग्जैक्टली क्या कौन सी क्वांटिटी किसके साथ वेरिएशन हो रहा है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे फॉर्मूले का सिलेक्शन करने वाले हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।